Hello everyone. My name is Jainil and I welcome you all to Echo with JP. We have already completed two chapters of our accounting. The first was accounting and its terminology and the second was dual effects of transactions and types of accounts. So I welcome you all to the third chapter which is Introduction to Goods and Services Tax. This is the first part of this chapter. There will be maximum three videos of this chapter because there are some points which are not going to come in your exam but which are important to study are in this chapter, and it is very important for a student of 11th standard to create a base about goods and service taxes as a student of commerce or as a student of accounts. So let us start. Starting with a special note that Goods and Services Tax (GST) is implemented in the year 2017 across the country. This is mandatory requirement. Hence, primary theoretical and practical explanation is given in this regard. For better understanding of the subject elements of accounts, practical illustrations and questions are covered exclusive of GST. Keeping in mind the level of students, GST related theoretical and practical explanation are covered only in the chapter of journal entries and subsidiary books. It is suggested that proper focus should be given to this during academic work. That is absolutely true. Let me tell you that GST was implemented in year 2017. Why it was implemented, I'm going to tell it to you further. And this is the very important chapter. When you are going to study next chapter, which is journal entries and subsidiary books, it is important that you give focus ड्यूरिंग द एकेडमिक वर्क. मैं जो भी आपको बताता हूँ ये चैप्टर में आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब जर्नल एंट्रीज और ये सब्सिडरी बुक्स वाला जो चैप्टर है वो आएगा उसके अंदर जीएसटी भी कहीं कहीं जगह पे मेंशन होगा, तो आपको ये सब चीज ध्यान में रखनी जरूरी है. इंट्रोडक्शन. To meet economic needs of the country, taxes are collected by the government. These taxes are categorized into two categories: direct taxes and indirect taxes. All of the economic needs of a country. Let's say you build a road, there is a construction going on where government is making a road, they are making a bridge, they are making public toilets, they are making public paths, they are availing you public transports. All these things are done because government collect taxes, and these taxes are classified into two taxes: direct taxes and indirect taxes. Now what are they? Indirect taxes are collected by central government, state government and governments of union territories. जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे मैंने बताया कि ये टैक्स दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, state government or union territories द्वारा. In India, different types of taxes were collected by different government. Because of variety of indirect taxes and compliance of their separate legal provisions from the viewpoint of its management, it was very complex. क्या हो रहा था कि जो भी गवर्नमेंट आ रही थी वो अलग अलग टाइप्स के टैक्स इंप्लीमेंट कर रही थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस वेराइटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस there was very much confusion created amongst people that where to collect this tax and where to collect this tax, as written here, that because of variety of indirect taxes and compliance of their separate legal provisions from the viewpoint of its management, it was very complex. This is what I told you. Affair for governments, tax authorities, and taxpayers to eliminate such type of complexities in indirect taxes. Instead of having different provisions, a central government, state government, and governments of union territories, new tax is introduced with the slogan of One Nation, One Tax. That is Goods and Service Tax, which we call is GST Act. आपने वो वाला मीम देखा है? ये जीएसटी यहाँ पे क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ. देखो, जैसे बहुत सारे टैक्सेस थे. कैसे कैसे टाइप्स के टैक्सेस है देखो. इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या लगते थे?
सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। अब जब कुछ भी टिकट मूवी देखने जाता तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। कस्टम ड्यूटी का टैक्स अलग लगता था, सेल्स टैक्स अलग लगता था। ये क्या थे? ओल्ड टैक्सेस आर विड्रॉन एंड कैंसल्ड। ये जो सारे टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो मैंने बताए, वो सबको ना बोल दिया कि नहीं, नहीं चलेंगे ये अब से। क्योंकि क्या बहुत सारा क्या हो रहा था यहाँ पे, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था अमंग पीपल। फिर उन्होंने क्या किया कि इन सबको हटाओ, हम लाते हैं जीएसटी, जो कि क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2017 से ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया था इंडिया में। आपने वो वाला मीम देखा है जहाँ पे आलिया भट्ट होती है और उनसे कोई पूछता है, ऐसे सामने अमिताभ बच्चन का फोटो होता है केबीसी वाला, तो पूछता है, आलिया जी, आपके आपको जीएसटी का मतलब पता है? हाँ, जीएसटी का मीनिंग क्या है? तो आलिया भट्ट रिप्लाई करती है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर। ये तो मजाक की बात है, पर उनको कोई समझाओ एक्चुअल में क्या होता है। वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उनको बोलो जाके मेरी वीडियो देखे, तो सब समझ आ जाएगा। ओके, आपको इतना समझ आ गया? ये आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। चैप्टर क्यों पढ़ना जरूरी है? इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे अप्लाई हो रहे थे, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, मैनेजमेंट बहुत बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था। और इसके अंदर क्या हो रहा था, जो सीएस थे, जो सीए है, सीएस है, और कोई अकाउंटेंट्स है जो प्राइवेट या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको क्या हो रहा है कि जब वो जर्नल एंट्रीज करते थे, तब इतने सारे टैक्सेस लगाना, इतने सारे कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो एक सिंपल जीएसटी ला दो भैया, एक ही टैक्स, खत्म बात। पर ये एक टैक्स कैसे, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो, ये कुछ चीजें हैं। जीएसटी कौन से टाइप से, अलग अलग एक्ट से जीएसटी के अंदर भी मैं आपको समझा देता हूँ, और फिर ये बात बता देता हूँ। ओके, स्टार्टिंग विद सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, द सीजीएसटी एक्ट। In this act, provisions pertaining to central goods and services are covered. देखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी दो चीज होती है। ये है सीजीएसटी, ये क्या बताया? इन दिस एक्ट प्रोविजन पर्टेनिंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर कवर्ड। जो भी सेंट्रल, सेंट्रल यानी, जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ तो गुजरात छोड़ के ऑल ओवर जितने भी स्टेट में उसमें इम्प्लाई होगा, उससे रिलेटेड जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो सीजीएसटी के अंदर कवर्ड होते हैं। अब क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, द एसजीएसटी एक्ट। इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड। क्या मतलब हुआ? जैसे उसके अंदर सेंट्रल था, इसके अंदर स्टेट है। अभी क्या होता है कि ना कि आप कोई भी चीज, इसके अंदर व्हाइट कलर नहीं है, समझो, आप कोई भी चीज खरीदते हो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर आप कोई क्लब में गए, लेट्स से यू गो टू अ क्लब, अब वहां पे मेन्यू पढ़ा आपने, कैन का प्राइस था वहां पे 60। ओके, अब क्लब है वो क्या है? एक लग्जरियस क्लब है। अगर आप वहां पे एक समझो, कोई भी ड्रिंक है, कोई भी बेवरेज है, उसका आप ड्रिंक लेते हो 60, तो उसके ऊपर वो लोग क्या करेंगे? 18% जीएसटी ऐड करेंगे। 18% ऑफ जीएसटी टैक्स, जीएसटी टैक्स मतलब जीएसटी है वो ऐड करेंगे। मैंने कैलकुलेट करके देखा तो वो क्या होगा, इसके ऊपर 18% आप ऐड करते हो तो क्या है, जो 60 रुपीज का कैन है उसकी प्राइस कन्वर्ट हो जाती है, स्माइली बन गया है, उसकी प्राइस बन जाती है 70.8, और दे टेक 70 रुपीज, और दे टेक 71 रुपीज। अब 18% जीएसटी क्यों और कैसे? अब देखो, ये जो 18% है वो ऐसा नहीं है कि
क्लब वाले डायरेक्टली चार्ज कर रहे हैं, वो लोग कुछ अमाउंट से ले रहे हैं और उस पर वो टैक्स लगा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं। अभी ये जो 18% जीएसटी है, उसको भी वो लोग बाइफोकेट करते हैं 9%। किस पे करेंगे? जो हमने तक दो अभी तक जीएस सर्विस टैक्स पढ़े जीएसटी के, 9% वो लोग रखेंगे सीजीएसटी, और एडिशनल 9% हो जाता है एसजीएसटी। समझ रहे हो? ये दोनों ऐड होके 18% में होता है, और हमारा जो 60 रुपीज का कैन है वहां पे मेन्यू में रखा होता है, वो टैक्स ऐड करके 70.8 में हमें पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, then comes Union Territories Goods and Service Tax Act, the UTGST. In this act, provision pertaining to Union Territory goods and services are covered. जैसे मैंने बताया कैन का प्राइस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है इन एनी अदर स्टेट, बट जब यूनियन टेरिटरी की बात आ जाती है हमारी, यू नो व्हाट आर यूनियन टेरिटरी, दे हैव सम स्पेशल रूल्स, राइट? आपको पता होगा कि वो इतने बड़े नहीं होते कि जिनको स्टेट का दर्जा दे दिए जाते हैं, और इतने छोटे भी नहीं होते कि उनको ऐसा सेपरेट रख दे, तो उनको यूनियन टेरिटरी कर देते हैं। और यूनियन टेरिटरी पे जो रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं वो इंप्लीमेंट की जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी जो दिल्ली में बैठे हैं हमारे मोदी साहब, उनके हाथ में होता है कि यूनियन टेरिटरी में क्या करना है। अभी जैसे गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में कुछ लाना है तो वो डायरेक्ट सीएम से बात नहीं करेंगे। गुजरात की पार्लियामेंट कहाँ? गुजरात में जो विधानसभा है उसके अंदर सब लोग बैठेंगे, हाँ हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, करना है, ये नहीं करना है करके जो भी न्यू रूल लाना है वो लगा देंगे। पर यूनियन टेरिटरीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो आ जाता है, जैसे पौंडीचेरी हो गया, दीव दमन हो गया, ये सब यूनियन टेरिटरीज के अंदर आते हैं। Then comes Integrated Goods and Service Tax, which is IGST. In this act, provision pertaining to supply of goods or services or both mode other than own state union territories are covered. What does that mean? In IGST, the supply of goods or services or both other than own state union territories are covered. इसके अंदर क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज तो है, दोनों ओन स्टेट, यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों के अंदर आने वाली गुड्स एंड सर्विसेज को हम कवर कर लेते हैं। फिफ्थ है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जीएसटी। सामने आ गया द जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट, ये पूरा नाम है। ड्यू टू इम्प्लीमेंट ऑफ जीएसटी, दो स्टेट्स हु आर हैविंग लॉस ऑफ टैक्स कलेक्शन, फॉर द compensation this act is formed. Under the Compensation Act, the state government whose tax collection will be reduced will be compensated with the same. What happens in this, that कि because of implementing GST, those have no matter which state who are having loss of tax collection, there can be many states those who have loss of tax collection. For the compensation, this act was formed, which was Goods and Services Act, or the Compensation CESS Act. Okay. Under the Compensation Act, the state government whose tax collection will be reduced will be compensated with. अगर कोई गवर्नमेंट है कोई भी स्टेट की, उसका टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो जाता है, it is reduced due to maybe any reason, so they will be compensated with the same. Okay, so that is it all for today's video. I'm going to meet in the next video regarding GST, and that will be much more interesting, I guarantee it. If you like my video, then please give it a like and subscribe to it. Thank you so much.